Hello students, good morning everybody. Welcome to the online educational program of DIPS School. Myself Bhavna Macwan, your English grammar teacher, welcomes you to our lecture. Students, last time we did lesson number 9 of grammar. Today we will do chapter number 10 of grammar and the topic is listening comprehension. Last time chapter 8 we did picture comprehension, 9 chapter we did reading comprehension and 10 chapter is listening comprehension. It is just one and the same. You have a paragraph, you have to read the paragraph, understand the paragraph and write the question answers. It may be in the form of true or false, tick the correct option, fill in the blanks, question answer, anything. But important is that it will be a paragraph and you have to understand the paragraph, listen to it carefully and then you have to answer the question answers given below. So let's go to the comprehension. So students, please turn your grammar textbook to page number 111. Grammar textbook page number 111. In this we have the paragraph which I will read and explain to you and then we will do the question answers. Activity number 1, Rahul Science Project. The title of this paragraph is Rahul Science Project. That Rahul is a boy and this paragraph will talk about his project. The topic is science. And then with this paragraph you will have the question answers and you have to answer them. I will send you the PDF also of this. Okay. Now pay attention to as I read and explain to you. Everybody please open your grammar textbooks. Page number 111, chapter number 10, listening comprehension, activity number 1, Rahul Science Project. All the students in Rahul's school were asked by the principal to take part in the science exhibition. Rahul decided to make a model for his science project. Now Rahul is in the school boy. Okay, the principal told that everybody has to take part in the science exhibition and Rahul decided to make a model of the science project. He loved space and always dreamed of traveling across the universe in a spaceship. Rahul decided that he always wanted to go in the space. That is why he took part and in the model he made something related to the space. With his father's help, he made a spaceship. उसके पापा के हेल्प से उसने spaceship बनाई. When it was complete, it looked beautiful. अच्छा दिख रहा था. Silver color का था. It was silver, blue and red in color. Silver, blue or red. But once complete, Rahul had changed his mind about being in a spaceship. पर जब तक ये प्रोजेक्ट उसका complete हुआ, तब तक उसका mind बदल गया था. उसको अभी ये spaceship नहीं बनाना था. He was worried about not surviving long on it. उसको चिंता थी कि मैं अकेले इसके ऊपर कैसे रह सकूंगा. His mother explained that our earth too was like a spaceship. उसकी मम्मी ने समझाया कि हमारी जो अर्थ है वो भी एक spaceship जैसी है. Because it traveled in space and if we did not take care of the earth, we would not be able to survive here too. मम्मी ने बताया कि अगर हम उसकी संभाल नहीं रखेंगे, उसका देखभाल नहीं रखेंगे तो हम भी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकेंगे, हम भी यहाँ पे रह नहीं सकेंगे, हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा. ऐसा उसकी मम्मी ने उसको एक्सप्लेन किया. राहुल स्टार्टेड लाफिंग. राहुल हंसने लगा. मदर सेड that the people must always remember to keep the air and water clean and to able to live long on the earth. मम्मी ने समझाया कि हमें पृथ्वी को क्लीन और साफ सुथरा रखना है, पानी को क्लीन रखना है, हवा को शुद्ध रखना है, तो ही हमारा जीवन अच्छा गुजरेगा, हम अच्छे तरीके से लंबे समय तक जी सकेंगे. We make the air impure when the smoke from vehicles and industries is added to it. हम एयर को गंदा करते हैं जब केमिकल वाली जो फैक्ट्रीज की हवा जब जाती है ना, तो हमारी हवा खराब हो जाती है. We make the water unclean by throwing sewage, chemical and other waste into it. हम पानी को भी खराब करते हैं क्योंकि जो गंदा पानी है उसके अंदर मिक्स करते केमिकल्स है, सब वो मिक्स हो जाता है ना, इसके लिए वो पानी डर्टी हो जाता है. If it is not clean, people on the earth will not be able to use it. सीधी सी बात है ना, अगर हम गंदा करेंगे तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे.
हम ऐसी गंदी हवा गंदा पानी थोड़ी ना पी सकेंगे। मम्मी ने राहुल को एक्सप्लेन किया। राहुल थॉट दैट ऑल द डर्टी एयर एंड वाटर ऑन अर्थ। राहुल ने सोचा कि सब गंदा पानी और हवा पृथ्वी पे है। He did not laugh or question his mother anymore. फिर उसको समझ में आया मम्मी जो कह रही है वो सही है। इसके लिए उसने हंसाने और मम्मी की बात ध्यान से सुनी और समझी। She had managed to convince him to do his best to save planet Earth. मम्मी ने उसको समझाया कि किस तरीके उसको अर्थ को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है, उसको साफ सुथरा रखना है, गंदा नहीं करना है। तो ये था हमारा कॉम्प्रीहेंशन 1। तो स्टूडेंट्स अभी हम जाएंगे एक्टिविटी नंबर 2, जो दूसरा कॉम्प्रीहेंशन, उसके ऊपर हम जाएंगे कॉम्प्रीहेंशन। फिर उसकी भी पीडीएफ मैं आपको भेजूंगी। आई होप सबको एक्टिविटी नंबर 1 जो साइंस प्रोजेक्ट था वो समझ में आया। अभी हम दूसरा पढ़ेंगे और इसके भी क्वेश्चन आंसर्स हम पीडीएफ के तौर पे लिख लेंगे, ठीक है? ओके, तो दूसरा है हमारा एक्टिविटी 2, लिटिल सैमी सेव्स द डे। जो सैमी है, एक लड़का है, वो किस तरीके से अपना दिन बचाता है उसके बारे में है हम देखेंगे। द पीपल फ्रॉम द टाउन ऑफ आल्फर्ड वर वेरी वरिड। आल्फर्ड नाम का टाउन था, उसके लोग बहुत चिंतित थे, वरिड थे। ओवरनाइट दिस काम एंड पीसफुल टाउन बिगेन एक्सपीरियंसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रॉबरीज। अचानक से ये गांव के अंदर बहुत सारी चोरियां होने लगी। The mayor was also worried and decided to have a meeting in the town hall. जो ये मेयर था इस देश का, उसने सोचा कि क्यों ना एक मीटिंग बुला के सबके साथ बात करूं कि क्यों ऐसी चोरियां हो रही है। हमारा टाउन तो अच्छा खासा भला है, हम अच्छे से शांति से रह रहे, पर क्यों ऐसी चोरियां हो रही है। मिस्टर सुल्की हैड प्लान टू पुट एन एंड टू देयर ट्रबल्स। मिस्टर सुल्की ने सोचा कि मैं इस मुसीबत को कैसे दूर कर दूंगा। तो फिर उसने है ना स्टूडेंट्स मीटिंग बुलाई, मेयर ने टाउन हॉल में उसने मीटिंग बुलाई। द पीपल ऑफ द टाउन डिड नॉट अग्री विथ मिस्टर सुल्की। तो सब लोग अग्री क्यों नहीं किए, उसने क्या किया हम देखते हैं। He told the mayor that he would build a high wall around the town to keep the robbers away. उसने कहा कि एक बड़ा सा दीवार बनाता है वो और चोर अंदर आ नहीं सकेंगे, पर सब लोग अग्री नहीं हुए। द पीपल डिड नॉट अग्री विथ मिस्टर सुल्की बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो हाउ इट वुड बी पॉसिबल फॉर एनी ऑफ देम टू लीव देयर टाउन। सब लोग सोच में पड़ गए कि वो टाउन छोड़ के फिर कहाँ जाएंगे। There were plenty of suggestions, but Mr. Sulky was determined to start the construction and would not change his mind. पर मिस्टर सुल्की ने तय कर लिया था, उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसको दीवार बनानी ही थी, बड़ी दीवार टाउन के आजू बाजू बना देता तो फिर चोर आ ही नहीं सकेंगे उसके अंदर। फिर क्या किया हम आगे देखेंगे। Even the mayor did not stop him as he was the richest and oldest man in the town. मेयर ने भी उसकी बात मान ली क्योंकि वो अमीर था और बुजुर्ग भी था। And was ready to snap at anyone who went against him. जो भी उसके खिलाफ काम करता ना वो उसकी बात ही नहीं सुनता था। Little Sammy had been sent on an errand by his mother. Little Sammy को उसकी मम्मी ने देखने को बोला कि जा देख के क्या हो रहा है। Hearing the commotion, जो सब बातचीत हो रही थी, सब बात कर रहे थे, सब लोग जमा हो गए थे। And out of curiosity, he decided to poke his head in through the window. उसको जानना था क्या हो रहा है और उसको रहा नहीं गया, इसके लिए उसको भी कुछ बोलना था। इसके लिए विंडो से उसने बोला, उसने शाउट किया। He gave a shout. Why can't we have a gate built into the wall? उसने बोला कि हम लोग वॉल के अंदर ही एक गेट बना देते हैं। It would be closed from inside with a gatekeeper. उसने कहा कि अंदर से हम बंद कर देंगे और एक गेट कीपर रखेंगे वहां पे, एक वॉचमैन जैसा। एंड दैट वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती। There was a stunned silence as Mr. Sulky angrily turned towards him. मिस्टर सुल्की को गुस्सा आया कि मेरे खिलाफ कौन आवाज उठा रहा है। सब लोग गुस्से से देखने लगे सैमी के सामने। सैमीज हार्ट वॉज रेजिंग, सैमी को भी डर लग रहा था। मिस्टर सुल्की स्माइल फॉर द फर्स्ट टाइम, मिस्टर सुल्की ने स्माइल किया उसको। He changed his mind and agreed to the gate. उसने अपना माइंड चेंज कर दिया और गेट बनाने के लिए राजी हो गया। Sammy's curiosity had saved the town and its people. सैमी ने जो सोचा, उसको जो सवाल उठा, तो सब लोगों ने माना कि हाँ ये सही है,
हम दीवार के अंदर एक छोटा सा गेट बना देते हैं और फिर वॉचमैन रखेंगे। तो सब लोग ने उसकी बात मानी और पूरा टाउन सेव हो गया। तो इस तरीके से सेमी सेव द डे। सेमी ने एक ही दिन में उसकी बात बता के मिस्टर सुल्की का माइंड चेंज हो गया और सारे लोग बच गए। तो ये था हमारा दूसरा कॉम्प्रिहेंशन। अभी स्टूडेंट्स इस कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम फिर से आ जाएंगे हमारे चैप्टर नंबर 10 पे और ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। इसकी पीडीएफ में आप लोगों को भेजूंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो भी हम एक बार देख लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट डिड राहुल मेक अ स्पेसशिप। तो वहां पे हमने टिक किया है। व्हाट वाज द कलर ऑफ राहुल्स मॉडल। तो सिल्वर, ब्लू एंड ब्लैक ये था या रेड था, तो हम टिक करेंगे। Why did Rahul change his mind about being in the spaceship? He was worried about not surviving alone. उसको चिंता थी, है ना, कि मैं अकेले रह पाऊंगा या नहीं। What did the mother say that the earth too was like a spaceship? मम्मी ने क्यों बोला कि हमारी अर्थ भी स्पेसशिप जैसी है? Because the earth is round in color. ठीक है, उसकी कलर क्या है? राउंड है, गोल है। देखो यहाँ पे हमने देखा कि उसका जो स्पेसशिप का कलर था वो कैसा था? सिल्वर, ब्लू एंड रेड। तो यहाँ पे भी हम उस पे ही टिक करेंगे, सिल्वर, ब्लू और रेड पे टिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो पेज टर्न करेंगे हम। What will happen if the air and water on earth is not clean? People will not be able to use it. फिर arrange the sentence in given below in the order of occurrence in the story. Write the correct number in the space. अभी हमको 5 सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे। हमको यहाँ पे नंबर लिखने हैं कि जैसे स्टोरी में कौन सा फर्स्ट आता है तो वहां पे लिखना है नंबर 1, कौन सा सेकेंड आता है तो नंबर 2। तो सबसे पहले है राहुल मेड अ मॉडल ऑफ द साइंस प्रोजेक्ट। फिर ही डिड नॉट वांट टू गो टू द स्पेस। फिर मदर सेड द अर्थ वाज टू लाइक अ स्पेसशिप। फिर 4th नंबर में राहुल थॉट ऑल द डर्टी एयर एंड वाटर ऑन द अर्थ। फिर सबसे लास्ट, पीपल मस्ट कीप द एयर एंड वाटर क्लीन टू बी एबल टू लिव लॉन्ग ऑन दी अर्थ। फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स हम स्किप करेंगे स्टूडेंट्स, पीछे से आप उसके आंसर्स खुद होमवर्क में टिक कर देना। ठीक है, सूटेबल टाइटल है हमारा सेव द प्लैनेट अर्थ। फिर नंबर 4 में है राइट द एंटीनम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। सिनोनिम वर्ड्स मीन सेम मीनिंग, पर एंटीनिम होता है ऑपोजिट। ठीक है, तो इम्प्योर का प्योर, डर्टी का क्लीन, क्वेश्चन का आंसर, लाफिंग का क्राइंग, फॉरगेट का रिमेम्बर, अग्री का डिसअग्री। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमारा एक्टिविटी 2 में जो हमने सुल्के के बारे में पढ़ा वो हमको लिखना है। इसके पीडीएफ में आप लोगों को भेजूंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स। आप पैराग्राफ में से ढूंढ लेना, पर सेकेंड का है 2 एडजेक्टिव्स। हमको 2 एडजेक्टिव्स ढूंढना है मिस्की सुल्की को और सैमी को डिस्क्राइब करते हुए। तो रिचेस्ट एंड ओल्डेस्ट। फिर बाय द एंड ऑफ द लेसन, इफ यू हैड टू गिव मिस्टर सुल्की अ न्यू नेम, व्हाट यू वुड गिव। तो अगर आपको नाम देना था तो क्या देते हैं? वाइज, इंटेलिजेंट और मिस्टर सुल्तान। ठीक है, इसकी पीडीएफ में आप लोगों को भेजूंगी स्टूडेंट्स। ओके, फिर है कॉलम नंबर 1 को कॉलम नंबर 2 के साथ मैच करना है। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए हैं स्टूडेंट्स, वो हमको चेक करना है। ठीक है, कॉलम ए में कॉलम बी के साथ मैच करना है। तो स्टंट साइलेंट, साइलेंस, तो उसका क्या मीनिंग होता है? साइलेंस में मतलब डिजायर टू लर्न और नो समथिंग मोर, कुछ हमको ज्यादा जानना है। ठीक है, नंबर 2 हार्ट रेजिंग, मतलब क्या होता है? तो बी में हम देखेंगे उसका आंसर। शॉक्ड इनफ टू बी एबल टू स्पीक, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। नंबर 3 टू चेंज वंस माइंड, तो उसका क्या मतलब होता है? आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स। सी कहां पे लिखा है हमने?
उसका आंसर क्या होगा? देखो, टू स्पीक शार्पली और एंग्रीली, टू स्नैप एट समवन। तो 4 का आंसर देखो क्या दिया है वहां पे। फिर क्यूरियोसिटी, उसका क्या मतलब होता है कि हमको कुछ जानना है ना, हमको बहुत ही इच्छा है कि हमको जानना है कि इसका मतलब क्या है। फिर इरैन का मतलब क्या होता है? 6 नंबर पे क्या आएगा? टू बी नर्वस। तो इसकी पीडीएफ स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को भेजूंगी, तो प्लीज चेक करके अपनी बुक्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको दोनों पैराग्राफ समझ में आए होंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स वहां पीछे के पैराग्राफ में से आप होमवर्क के लिए लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसकी पीडीएफ में भेजूंगी तो कंप्लीट करना। और स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ समझने के लिए बार बार वीडियो देखते रहना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।